میڈیا پہ یہ باتیں بہت زیادہ گردش کر رہی ہیں کہ فردوس جمال اپنے بچوں اور بیوی کو چھوڑ کے اکیلے کمرے میں زندگی گزارنے لگے. نہیں یہ بالکل غلط تاثر ہے. میرے بچے میرے ہی ہیں, میرے ہی رہیں گے, میں ان کا باپ ہوں, باپ ہی ہوں. بچپن سے ہی میری ایک خواہش تھی کہ میں ایک بڑا اداکار بنوں, لوگ مجھے پہچانے. کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار, اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, آپ کی میزبان طیبہ آوان اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی دنیا. ناظرین, آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے فردوس جمال سے, جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں, جن کو آپ نے اپنی ٹی وی سکرینز پہ دیکھا ہوگا. انہوں نے بطور ایکٹر 50 سال انڈسٹری کو دیے, جس میں انہوں نے ڈراماز میں کام کیا, ایز اے ڈائریکٹر کام کیا اور بہت سے کام کیے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل ہمارے جتنے بھی پرانے اداکار ہیں وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں اور کن کن کرائسس سے گزر رہے ہیں. آج ہم فردوس جمال کی کہانی کے بارے میں جانیں کہ آخرکار اتنی دولت, شہرت, عزت کے بعد اب ایک کمرے میں کیوں زندگی گزارنے پر بند ہو گئے. ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دولت کا آپ نے جی بھی ذکر کر دیا, شہرت زیادہ ہو گئی. بہرحال اینی وے, شکر الحمدللہ. سر اب کیسے ہیں آپ؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ پچھلے دنوں آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی. ہاں بس ٹھیک ہوں الحمدللہ. وہ تھوڑا سا میرا سٹامک کا مسئلہ تھا جو بہتر ہے. ہوتا رہتا ہے, زندگی ایسی ہے, بندہ کبھی صحت مند ہوتا ہے, کبھی بیمار ہوتا ہے, کبھی خزاں ہوتی ہے, کبھی بہار ہوتی ہے, کبھی گرمی ہوتی ہے, کبھی سردی ہوتی ہے. سب موسم ہے. اسی طرح انسان کے وجود کے بھی موسم ہوتے ہیں, اس کے موسم بھی بدلتے رہتے ہیں. جب انسان بیمار ہوتا ہے اور اس طرح کی ایج میں آتا ہے تو اپنی بیوی اور بچوں کے سارے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جہاں تک ہمیں پتہ چلا ہے آپ نے اپنے بیوی بچے چھوڑ دیے, کیا وجہ بنی؟ یہ کس نے کہا ہے آپ کو بیوی بچے چھوڑ؟ سوشل میڈیا پہ یہ باتیں بہت زیادہ گردش کر رہی ہیں کہ فردوس جمال اپنے بچوں اور بیوی کو چھوڑ کے اکیلے کمرے میں زندگی گزارنے لگے. نہیں یہ بالکل غلط تاثر ہے. بیوی بچے جو ہوتے ہیں وہ آپ کی زندگی کا, آپ کی شخصیت کا, آپ کے وجود کا حصہ ہوتے ہیں. تا وقت کہ آپ بیوی کو ڈیورس نہ دے دیں یا آپ چھوڑ نہ دیں ان کو, تو میں نے تو بیوی بچوں کو نہیں چھوڑ. بچے تو خیر ویسے ہی وجود کا حصہ ہوتے ہیں, آپ کی ایکسٹینشن ہوتے ہیں. بچے تو چھوڑے نہیں جا سکتے, چونکہ کوئی بھی کچھ بھی کر لے ولدیت تو نہیں بدلتی نا. وہ فلاں مطلب سن فلاں ہی ہوگا نا. یہ تو نہیں ہوگا کہ جی وہ باپ بھی بدل جائے, ماں بھی بدل جائے گی. ماں باپ نہیں بدلتے, نہ اولاد بدلتی ہے, نہ ولدیت بدلتی ہے. تو الحمدللہ میرے بچے میرے ہی ہیں اور میرے ہی رہیں گے. میں ان کا باپ ہوں, باپ ہی رہوں گا. اب اس وقت آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں رہ رہے اور کیا وجہ بنی؟ کچھ اس میں تھوڑا سا ایک پرابلم وہ یہ ہے کہ مجھے چونکہ ٹریٹمنٹ ڈاکٹرز وغیرہ پہ جانا ہوتا ہے, تو سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ اب میں مطلب ہے گاڑی جو ہے نا خود میں نہیں ڈرائیو کرتا. مطلب ذرا رسکی ہے نا, چونکہ سم ٹائمز جب آپ ویک ہوتے ہیں تو اینی تھنگ کین ہیپن, سو ون شوڈ بی کیئرفل. تو چونکہ وہ دور ہے ذرا, گھر میرا پارک ویو میں ہے, تو میں وہاں سے میرا آنا جانا جو ہے, چونکہ بیٹا ایک تو میرا باہر ہے, دوسرا بیٹا چونکہ اس پہ بہت ساری ذمہ داریاں, رسپانسبلٹیز ہیں. گھر کو بھی اس نے دیکھنا ہے, ماں کو بھی, پورے گھر کو, بہنوں کو. تو اس نے اپنا جم بھی دیکھنا ہے, کام بھی کرنا ہے. تو اس وجہ سے میں نہیں چاہتا کہ کسی پہ میں برڈن بنوں یا کسی کے لیے میں پریشانی کا باعث بنوں. شروع سے میری عادت ہے, اپنے بہن بھائیوں کے لیے, ماں باپ کے لیے بھی میری شروع سے کوشش رہی ہے. جیسے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ, بلکہ ایک ہماری دعا ہوتی تھی جو ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے کہ حضرت واصف علی واصف کی, یا اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرما اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرما. تو آسانیاں مانگیں آپ اور کوشش کریں کہ اللہ کے بندوں کو آسانیاں آپ عطا کریں. میں آسانی باہم پہنچائیں.
ताकि उनकी ज़िंदगी आसान हो। तो सर यहाँ पर हम बात करें, आपने कितना अरसा जो है इंडस्ट्री को दिया और बतौर आपने एक्टर डायरेक्टर काम किए, और उसके बाद अब आप जो हैं अब क्या काम कर रहे हैं? मैं अभी काम कर रहा हूँ। मसला सिर्फ ये है कि अब जो ज़्यादा काम है, मसलन वीडियो इंडस्ट्री जो है ना, वो सारी तकरीबन वो कराची शिफ्ट हो गई है। तो लाहौर में या इस्लामाबाद में, पिंडी में, पेशावर में तो खैर काम है, लेकिन वो पश्तो हिंदुओं का जो लोकल होता है, जैसे लाहौर में भी लोकल जो है पंजाबी ड्रामा होता है। तो जो उर्दू ड्रामा है और जो उर्दू के ड्रामों के जो चैनल्स हैं, प्राइवेट प्रोडक्शन जो है, प्राइवेट चैनल्स हैं, वो सारे जो हैं वो कराची बेस्ड हैं। तो काम के लिए वो ये है कि आपको कराची जाना पड़ता है। तो समटाइम्स ये है, आप घर की मसरूफियात होती हैं और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कहते हैं ना, और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा। तो इस वजह से मैं चूँकि लाहौर से मेरी एक शुरू से एक उनसियत भी है, और मुझे अल्लाह ने इज़्ज़त भी लाहौर से ही दी है। मैं इस्टेब्लिश भी लाहौर से हुआ, और लाहौर का जो एटमॉस्फेयर है, इसकी एक आबो हवा है ख़ास तौर पे, तो जो मैच करती है पेशावर से। तो इस वजह से जो टेम्परेचर भी ऑलमोस्ट, अगर आप देखें ना, पेशावर का लाहौर का एक तरह का ही होता है, सर्दी भी एक तरह की, गर्मी भी एक तरह की। तो मुझे ये ज़्यादा सूट करता है। तो सर मुझे ये बताइएगा कि जो बातें सोशल मीडिया पे हो रही हैं कि आपने ये दावा किया है कि आप बीवी से शादी करके पछता रहे हैं, आपने शादी करके बहुत बड़ी गलती की, आपके बीवी और बच्चे आपको छोड़ के जा चुके हैं और आपने उन्हें छोड़ दिया, इसमें कितनी सदाकत है? ये सब फजूल बातें हैं। लोग कहते हैं ना, कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। आप बात एक करते हैं, लोग उसकी गलत इंटरप्रिटेशन निकाल के उसकी और तशरीह शुरू कर देते हैं। जैसे बात कुछ होती है, लोग उसकी तशरीह कुछ कर लेते हैं। मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि मैंने मतलब है मेरी शादी जो है वो लेट हुई। गलत टाइम से मुराद ये था कि मेरी अर्ली एज में, जिस 18-19 साल 20 साल की जो एज होती है ना, उसमें शादी हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो मैं चूँकि अपना करियर बनाने में ज़्यादा मसरूफ़ रहा और ज़्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ी अपने आप को इस्टेब्लिश करने में, फिरदौस जमाल बनने में। चूँकि मेरा जो मोटो था, या शुरू में बचपन से ही मेरी एक अंदर एक ख्वाहिश थी कि मैं एक बड़ा अदाकार बनूं और लोग मुझे पहचाने, जाने पहचाने, मतलब ये मेरी कन्विक्शन थी। आई वांटेड टू बिकम अ गुड एक्टर एंड बिग एक्टर। एक रिनाउंड आदमी मैं बनना चाहता था, पर्सनालिटी। उसके लिए मुझे स्ट्रगल करनी पड़ी। वो एक दो दिन में नहीं होता। दो किस्म के आर्टिस्ट होते हैं, एक होते हैं हादसाती तौर पर होते हैं, जिसको हम एक्सीडेंटल कहते हैं, हादसे की पैदावार होते हैं। वो आते हैं, क्लिक हो जाते हैं। वो बहुत कम लोग होते हैं, उनको हम खुशनसीब लोग कह सकते हैं कि वो आया, देखा और छा गया। ठीक है। एक वो होते हैं जो जिनकी नसीब में स्ट्रगल लिखी होती है और जो लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं। चूँकि जो आते हैं ना हादसाती, जो अदाकार होते हैं या फनकार होते हैं या ऐसे लोग जो हादसाती तौर पर मशहूर हो जाते हैं, वो जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं। एक वो होते हैं जो बाकायदा प्रोसेस से आते हैं, स्ट्रगल करके आते हैं, एक पढ़ के आते हैं, एक्सपीरियंस करके आते हैं, मुख्तलिफ कैफियत से गुजर के आते हैं। तो उनका जो स्पैन होता है, उनका जो अरसा होता है उनकी पॉपुलैरिटी का या उनके करियर का, वो काफ़ी लंबा हो जाता है। क्योंकि जितनी आप मेहनत और स्ट्रगल करते हैं उससे आते हैं, तो फिर आप आगे रेजिस्ट भी करते हो और आपकी वो जो प्रोफेशनल लाइफ है वो लंबी हो जाती है। क्योंकि आप हादसे की पैदावार नहीं होते, आप बाकायदा सीखते हैं, स्ट्रगल करते हैं, फिर पढ़ते भी हैं। जिस तरह मैंने बाकायदा, हालांकि यहाँ कोई इंस्टीट्यूट तो है नहीं, हमारे यहाँ कोई एकेडमी नहीं थी, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था, अभी तक शायद ऐसा कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूशन नहीं। 50 साल आपने इंडस्ट्री को दिए, सबसे पहला ड्रामा कौन सा आया और किस ड्रामे के बाद आप हिट हुए?
मैं तो पश्तो एक ड्रामा था, तो रावलपिंडी इस्लामाबाद स्टूडियो से उसमें मैं पहली बार आया था। फिर उसके फ़ौरन बाद ही पेशावर टीवी बना, तो पेशावर टीवी का जो पहला ही ड्रामा था जो इनाग्रेशन के दिन ये टेलीकास्ट हुआ था, इनको ड्रामा था लाडले। वो समझें कि मेरा पहला ड्रामा था बाकायदा। उससे पहले वैसे मैंने रावलपिंडी इस्लामाबाद स्टूडियो से पश्तो और इनको ड्रामे होते थे, तो वो एक ड्रामा था बबोया दा जाल, वो मेरा पहला ड्रामा था। मिसेस मुनव्वर तौफीक उसकी प्रोड्यूसर थी। इंडस्ट्री से क्या सीखा आपने और क्या आप दूसरों को भी सिखाना चाहेंगे? इंडस्ट्री से तो कोई कुछ नहीं सीख सकता, इंडस्ट्री को आप कुछ दे सकते हैं, इंडस्ट्री किसी को क्या सिखा सकती है? बस इंडस्ट्री बंदा लगाता है ना, इंडस्ट्री बंदे तो नहीं प्रोड्यूस करती। कोई भी आप इंडस्ट्री देख लें, प्लास्टिक इंडस्ट्री है या स्टील इंडस्ट्री है, वो बंदा ही लगाता है। इस फील्ड में रहकर, मेरा मतलब ये था कि इस फील्ड में रहकर आपने 50 साल का जो एक अरसा इस फील्ड को दिया, एक अरसा आपने गुजारा। 50 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है। इस 50 साल के अरसे में आपने क्या सीखा और हमारे जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं उनको क्या सिखाना चाहेंगे? इंसान ऐसी मखलूक है, अल्लाह ने पैदा की है कि ये आखिर वक्त तक, मरते दम तक सीखता भी है और सिखाता भी रहता है। बिल्कुल ऐसे। ये तो मैं तो ये दावा ही नहीं कर सकता कि जी मैं बहुत कुछ सीखा है या मैंने बहुत कुछ किया है। मैं तो आज भी अपने आप को परफॉर्मिंग आर्ट्स का, अदाकारी का एक मामूली सा तालिब इल्म समझता हूँ। और वो कहते हैं ना, अभी इश्क के इम्तहान और है, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं। तो कोई बंदा, मैं समझता हूँ वो दुनिया का अहमक तरीन इंसान होगा जो ये कहेगा कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया या मुझे बहुत कुछ आता है, वो इंतहाई अहमक बंदा होता है। तो मैं उन अहमकों में शामिल नहीं होना चाहता। मुझे वाकई कुछ नहीं आता, मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ, सीखता हूँ, रोज़ कोई ना कोई नई बात मैं सीखता हूँ। जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं इनके लिए क्या मैसेज है? व्यूअर्स के लिए मैसेज है कि आप अपने आप को मुकम्मल ना समझे, मुकम्मल सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। इंसान कमज़ोर है, इनकम्प्लीट है, तो आप अपने आप को, अपने जो वैक्यूम्स हैं, आपके अंदर के जो खला हैं, उन्हें पुर करने की कोशिश करें। जो आपको आता है वो सिखाएं बग़ैर किसी लालच किसी को, और जो नहीं आता वो सीखने की कोशिश करें। चूँकि इंसान जो है बुनियादी तौर पर वो तालिब इल्म होता है, वो सारी ज़िंदगी कहते हैं ना, माँ की गोद से लेकर कब्र की लहद तक वो सीखता ही रहता है। बिल्कुल ऐसा। तो इस वजह से आप सीखने की कोशिश करें। जहाँ आप ये समझते हैं कि जी आपको बहुत कुछ आता है, उधर आप ये समझ लें कि आपको कुछ भी नहीं आता। तो सीखें और सिखाएं, ये बहुत बड़ा काम है कि जो आपको आता है कोशिश करें वो दूसरों को सिखाने की कोशिश करें। व्यूअर्स, आज हमारे साथ फिरदौस जमाल मौजूद थे। इनकी कहानी हमने जानी। सोशल मीडिया पे जब बातें गर्दिश कर रही थी कि इन्होंने जो है अपनी बीवी और बच्चों को छोड़कर एक तंग कमरे में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। आखिरकार कितनी सदाकत थी इस बात में, ये तो आज हमने फिरदौस जमाल से जानी। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। इसी के साथ अपनी मेजबान तैयबा अवान को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।